ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਝਾਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਮੋਮਨ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕੈਂਥ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखो, मैं ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਏ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂ ਆ ਇਹਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਐਮਿਕੇਬਲੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, सतनाम कैंथ साहब, तुसीं साडे नाल जुड़े, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा, जैसे आप पढ़ाते हैं, विज्ञान का इतिहास पढ़ाते हैं, तो बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जब आप नए आइडियाज़ के साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं चर्च के साथ, स्टेट के साथ टकराव हो गया। तो हम अब सोशल साइंस के मामले में, आर्ट के मामले में किसी नए दौर में दाखिल हो रहे हैं? ये लग तो रहा है कि एक डेंजरस दौर में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें सच में जैसे सिर पे तलवार लटका देते हैं ना, वो ये FIR का तुम्हारे पे लटकाया हुआ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को गलत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, जो वो राइट भी है। इसको एक क्रिमिनल एक्ट में कन्वर्ट करना, अगर तुमको कोई बात पसंद आई उसको क्रिमिनल एक्ट में कन्वर्ट करना, मुझे तो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड लग रहा है। पर मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, जो मिस्टर कैंथ के आर्ग्यूमेंट है कि वो या तो माफ़ी मांगे या FIR होगा वगैरह, मेरे को ये लगता है कि उनकी बात को पूरी तरह समझा नहीं गया। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि प्रॉब्लम कुल गलत लफ्ज़ों की है। वो उनकी आर्ग्यूमेंट एक्चुअली अगर आराम से बैठ के सोचो तो वो किसी भी तरह से एंटी दलित नहीं कहे जा सकती, क्योंकि दो बातें। एक तो वो कहीं ये नहीं कह रहे कि सारे दलित करप्ट हैं, ये सारी कम्युनिटी को वो काला नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि वो सब पूरी भूमिका अगर पढ़ें, तेजपाल जी का आर्ग्यूमेंट पढ़ें, तरुण तेजपाल का, तो वो तो कह रहे हैं ये सारा सिस्टम इतना करप्ट है और इस सिस्टम के रूल इलीट्स ने बनाए हैं, अपर कास्ट के और अपर क्लासेस ने बनाए हैं। तो जो गरीब लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। और ये इस ऐसे माहौल में उनको आगे बढ़ने के लिए कोई वो लाचार हैं, उस करप्शन रूल तोड़ने के अलावा उनको आगे बढ़ नहीं सकते। और अगर वो ये तोड़ के आगे आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं वो वही होते हैं। हाँ, वो इसलिए वो ज़्यादा विजिबल सिर्फ एक
उसमें बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे JM जैसे एक बात जो उन्होंने कही है कि जो अमीर आदमी है, जो लगातार किसी ना किसी तरह से बना हुआ है, करप्शन में बना हुआ है, उसके पास करप्शन करने के हजारों तरीके हैं। वो ये कहेगा कि मेरा बेटा बेटी लंदन में पढ़ते हैं, आप उसकी फीस जमा करवा दीजिए। लेकिन जो नया बंदा पहली बार आता है उसकी ज्यादा विजिबल होती है। इसका मैं समाजशास्त्र में नहीं जाना चाहूंगा कि ये सिर्फ किसी खास तबके के लोग हैं। कोई भी बंदा जो इस करप्शन के जो सेक्टर में पहली बार दाखिल हो रहा है वो ज्यादा विजिबल है। नहीं, सवाल वही घूम फिर के वहीं आता है कि नंदी जी ने कहा, अगर सिर्फ उन्होंने ऐसा नहीं है कि अचानक शब्दों का गलत प्रयोग हो गया या वो शब्द ठीक से चुन नहीं पाए या शब्दों को सही से प्रयोग कर लिया। ललन जी कह रहे थे उस वक्तव्य से पहले, उस वक्तव्य के बाद का। ये कोई फिल्म की एडिटिंग नहीं है कि बीच का पार्ट निकाल लीजिए कि उसको ठीक से करा जाए। सवाल ये है कि उन्होंने कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये वक्तव्य देते हुए ध्यान रहा होगा कि, और विजिबिलिटी की बात अगर बात करें तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि क्या उनके पास आंकड़े हैं? एक बात है कि जब हम ये कहते हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जहाँ उनकी असलियत सामने आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उसको ओवर रीड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो तो 45 साल से लिख रहे हैं। इस तर्ज पे उनका कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। साहित्यकार, इतने महान समाजशास्त्री अगर वो हैं तो आज पुलिस भी, राजस्थान पुलिस ने उनको जयपुर छोड़ने के लिए मना किया है। और उनके जितने लेख हैं, कुछ लेख मैंने भी पढ़े हैं, मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन उस आदर सम्मान का ये मतलब नहीं कि आप पूरे समुदाय को टारगेट करके उनकी भावनाओं को भड़काएं। और उनको मौका दिया जाएगा, कानून के माध्यम से उनको दिया जाएगा। मुझे लगता है संजीव, एक जो मैं कहना चाहता हूं कि ये मौका हम सब अपने लिए क्यों नहीं मांग रहे हैं कि हम जो हमारे सामने है उसको भी एक नए सिरे से समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ हम कानून के हवाले से ही क्यों समझ रहे हैं? राज्य हर चीज का मर्ज का इलाज राज्य क्यों है? और आज नंदी हैं, कल आप हो सकते हैं, कल हम लालन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सवाल ये देखिए बारू जी, सवाल ये नहीं है राज्य नहीं होंगे तो इसका मतलब संवैधानिक प्रक्रिया को आप भी नहीं मान रहे। राज्य प्रशासनिक व्यवस्था तो संविधान किसके लिए है? संविधान हमारे लिए, संविधान हमारे लिए। तो संविधान, अगर मैडम कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होगी, तलवार लटक गई, कोई बात नहीं, प्राथमिकी है, उसमें जांच होगी। तलवार लटकना बहुत चिलिंग इफेक्ट होता है इन चीजों में। संविधान में वो एट्रोसिटी एक्ट बनाया है, उसी संविधान के एक्ट के तहत उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। पर ये एट्रोसिटी कही जा सकती है? क्या बिल्कुल एट्रोसिटी, इसको एट्रोसिटी कही जा सकती है? तो एट्रोसिटी का मतलब मिनिमलाइज कर रहे हैं एट्रोसिटी। ये कहने का, अगर आप डॉक्टर साहब अगर आप इस एक्ट को पढ़ लें तो उसमें अरे क्या बात करते सेक्शन है, हाँ। आप उसमें पढ़ सकते हैं कि आप किसी को जानबूझकर अगर उसके जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करेंगे, और आपने तो पूरे समुदाय को भ्रष्ट बना दिया। ये समुदाय को भ्रष्ट, यही तो गड़बड़ है। और ललन जी की बात कर रहे हैं कि अगर समाजशास्त्री वाकई ही, मैं सम्मान करता हूं, मैं नहीं देखिए, मुझे लगता है एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं मैं समाजशास्त्री वर्ग की बात नहीं मैं कर रहा। एक व्यक्ति विशेष की मानसिकता जो झलक के आई है, देखिए इसको वही बात है ना कि जब हम आशीष नंदी के बारे में बात कर रहे हैं, एक एपिसोड में आप आशीष नंदी को ये रीड करते हैं, 45 साल तक जो उन्होंने बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस किया है उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। एक परिवार में मेरा बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, 25-30 साल के बाद अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, वो उसका खून होता है, तब भी मतलब उनका ब्लड उनमें संचार कर रहा है, लेकिन वो भी परिवार से अलग होता है। ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब संजीव, अगर उनकी एक छोटी सी बात है जिसमें एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि जहां पर मैंने वो 2 वाक्य बोले हैं उसके 2 वाक्य पहले और 2 वाक्य बाद वाले भी सुन लिए जाएं। और दूसरी बात जो वो बार बार कह रहे हैं कि अगर मैंने शब्दों का चुनाव गलत किया है तो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ 45 साल का काम करने के बाद क्या हम उस आदमी को इतना स्पेस नहीं देना चाहते कि उसकी बात को हम नए सिरे से समझ लें? उसके लिए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और रही बात चर्चा हो रही है, नहीं चर्चा आप या तो आप कहें कि आप लोग आशीष नंदी जी के समर्थन में देखिए उस बात को करने नहीं पहली बात तो एक बात संजीव कर दे, हम आशीष नंदी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आशीष नंदी के लिखे हुए से उस पे बहुत सी तरह के डिफरेंसेस हैं और उस पे हम
उसको हम समय समय पे दिखलाते हैं, पर जहां तक इनफैक्ट मैं तो उनका काफी क्रिटिक मीरा रह चुकी हूं। मैंने तो एक अपनी- किताब लिखी है मीरा जिसमें ने मैंने अपनी उनको राइटिंग्स में डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि आशीष नंदी किस दिशा में जाते हैं। जी तो उन्हें ललन reactionary ललन कहती रही संजीव, हूँ एक कुछ बात और जो है कि context में। जब हम सोशल साइंस के आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो बहुत बार ये होता है कि हमारे पास हाँ या ना में जवाब नहीं होता, नहीं और होते बहुत हैं। पेचीदा आर्ग्यूमेंट होता है। खासतौर पे मीरा अब जब बार बार आशीष नंदी की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उन्होंने पूरी किताब लिखी है इस बात पे कि आशीष नंदी की जो समझ है गलत है। उसके मीरा, ऊपर आपके जो प्रश्नांकित किया है डिफरेंसेस इन्होंने। हैं और ये आर्ग्यूमेंट जो अभी आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, इसको आप जोड़ के कैसे देखती हैं? देखिए, मेरी उनके साथ डिफरेंसेस काफ़ी पुराने हैं क्योंकि वो काफ़ी कई बार वो एक एक्सट्रीम सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, ऑल इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग द राइट ऑफ द डाउन ट्रॉडन। जी, वो उनको पूरी स्पेस देना चाहते हैं टू द एक्सटेंट कि अब साइंटिफिक टेम्पर के मामले में मेरी उनके साथ बहस रही थी और उस मुद्दे पे मैंने उनको क्रिटिसाइज किया था, जिसमें उन्होंने एक इतना एक्सट्रीम सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया था कि भाई ये जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो गरीब पिछड़े वर्ग के और हमारे भारत के आम व्यक्ति जो हैं, उनके विश्वास, उनका जो भी विश्वास है, उनके सोचने का ढंग है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, और जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी बाहर की चीज, वेस्टर्न चीजें उन पे ना थोपे। तो कुल मिला के ये बात बनती है कि उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसके साथ हमें एग्री करने का, डिसएग्री करने का, पार्शियली एग्री करने का, पार्शियली डिसएग्री करने का हक है। बिल्कुल, वो जब उनकी बातें, मैं उनके डिटेल्स में हम उनके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, पर उनकी हमेशा से ही हैज ऑलवेज स्टूड with the downtrodden and the poor and the डॉक्टर साहब की बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब अगर अपनी विचारों की अभिव्यक्ति या अपनी कलम से उनको क्रिटिसाइज कर सकती हैं, लेकिन जब एक विशेष समुदाय की भावनाओं भड़की और विशेष समुदाय के लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तब ये उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे भी मुद्दा ये है दो कि चीजें नजर आ रही हैं। समाज शास्त्र में डिसएग्री करना और एग्री करना ये एक राइट है, जहां पर हम डिसएग्री करने का या एग्री करने का राइट को सरेंडर करते हैं। सामाजिक ये है भावनाओं, अमी साहब, अगर सामाजिक भावनाएं भड़कती हैं तो उसके लिए एक कानून है, उसके लिए एक लिमिटेशंस हैं, दायरे हैं, उनको क्रॉस नहीं कर सकते। मैं किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए मैं नहीं कह बिल्कुल सकता। स्पष्ट हो गया। हम अभी यहाँ पर बहस मुझे लगता है समाप्त नहीं हो सकती, हम इसको दर्शकों पर छोड़ देते हैं। आप सभी आज की बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਬੱਕੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।